good morning everyone. So in the last class we did some topics science. And in fact last week the slide में मैंने 2-3 questions add करे थे for your practice. So in case if you have any doubt you can ask any question to anyone. Or then if not, then I'm going to start with the next chapter, your limits. All in the online class also. Any doubt, any question from your side? Yes. So next we are starting with the last chapter. That is the basic idea of limits. Consider a situation. Say there is one apple and there are two persons. So we can give them half to each. Let's say there is one apple and there are 10 persons who are there. So we can even subdivide that into 10 equal parts, you can say, and they can be given. 100 persons are there. Still manageable. 1,000, 10,000, 1 crore, the Earth's population and only one apple. So can we say we are giving 0 portion to the persons? कितना स्मॉल मिले एटॉमिक स्मॉल 0.00001 टाइम्स ऑफ ग्राम कितना भी हो but we can always assume that the amount so ever the person will be getting will be approaching to 0 gram but that is not 0 gram actually और इवन चलो उतना नहीं मैं 1000 लोगों में उस एप्पल को डिवाइड करने की बात करता हूँ तो बहुत स्मॉलर अप्रोचिंग टू 0 so exactly being equal to 0 is different from approaching the value to 0. That's the basic fundamental concept of limits. So fundamentally, mathematically अगर मैं बात करूँ तो उस चीज को ऐसे समझिए कि there is a number line and there is a point say x is equal to 1 over 8. ठीक है? Particular case here when x is 1. I am approaching 1 from left hand side. Means left hand side पे क्या पॉइंट हो सकता है 0.9 और क्लोजर आ जाओ 0.99 और क्लोजर आ जाओ 99998 और क्लोजर आ जाओ something like this and so on. Similarly अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं अब राइट साइड के ऊपर कैसे पॉइंट्स आप सोच सकते हैं सिर्फ 1.1 और क्लोजर आता हूं 1.01 और क्लोजर आ जाता हूं say this point and so on. So there are infinitely many real numbers which lie exactly near to 1 from left and right hand side. कंप्यूटर में करते ना जूम इन तो आप इसको जूम करते चलो you can visualize that case. 9th में आपने ऐसा एक करा हुआ इस चैप्टर में जहां बताया गया था कि there is a magnifying glass उसको रखा नंबर लाइन पे अब उसको देखते चलो कि कितने ज्यादा हैं तो देखने में तो 1 के आसपास कुछ भी नहीं है but there are infinitely many real numbers just left to 1 and just right to 1. अब अगर आपके सामने एक फंक्शन रख देता हूं f of x as say x plus 1 and I say what is the value of f of 1 इस पॉइंट के ऊपर तो आपको पता है आप x को जब 1 रखेंगे 1 plus 1 that will give me the answer equal to 1. अब इस सिचुएशन को ऐसे अगर मैं कहूं what is limit when x is approaching to 1 इस नोटेशन को आप थोड़ा समझना शुरू करिए limit x is approaching to 1 के इक्वल नहीं है उसके पास पहुंच रहा है लेफ्ट से या राइट से तो अब इस केस में लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 फंक्शन क्या था मेरा x plus 1 कोई दिक्कत नहीं है मैंने x को फिर 1 रखा since I am getting the finite value I can easily claim कि चलो जो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी और जो मैंने इसकी लिमिट एक तरह से निकाली है वो सेम आ रही है अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकालता से 0.9 के ऊपर 0.99 के ऊपर 0.99998 and so on और इसी तरह से 1.1 के ऊपर
1.01 के ऊपर, 1.00002 के ऊपर एंड सो ऑन. व्हाट इज दिस आंसर? 1 ऐड करते चलो बस. 1.9, 1.99, 1.9998, 2.1, 2.01, 2.00002 and so on. क्या नहीं आएगा? माइनस क्यू. 1 से जस्ट पहले पॉइंट क्या होता है? 1 से पहले यहाँ क्या है? 0. तो 0 और 1 के बीच में इस साइड में 0.9 आएगा, राइट? अब -1 तो और इधर हो गया, -0.9 और इधर हो गया, 0 से लेफ्ट में. मैं बात कर रहा हूँ नेबरहुड की, और नेबरहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर सिटी. सिंपल ऐसे समझो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एडजेसेंट नेबर. आप अपना फ्लैट घर है, उसके साथ वाले जो पड़ोसी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बस. मैं आपकी सिटी की, आपके इंडिया की बात नहीं कर रहा. इमेजिन दैट वे कि जस्ट जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे क्लोजर हैं, मैंने उनके ऊपर अब जरा इस फंक्शन की वैल्यू को निकाला. Look at these answers. Can I say these answers are all confining to some specific value? Yes, sir. Approaching to. That is true. तो यहाँ पर मैंने इससे स्टार्ट करना था. बहुत इजी केस लिया है कि अगर मैं वैल्यूज को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करूँ, चाहे लेफ्ट से या राइट से, both वे वैल्यू इज कन्वर्जिंग टू अ फाइनाइट वैल्यू, एंड दैट वैल्यू कॉमन सेंस से 2 आ गई. और वही हमने देख लिया था, इसकी डायरेक्ट वे में लग रहा था, वो लिमिट आ चुका है. तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन वाया दिस ऑब्जर्वेशन इज 2. डायरेक्ट रूल 2. डायरेक्ट रूल हर बार एप्लीकेबल होगा, चेक कर लेते हैं. यहाँ तो मैंने भी स्टार्ट करा था ना. अब जरा मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ. लेट मी कंसीडर लिमिट x to 1 या लिमिट x to 2, x square minus 4 upon x minus 2. Observe that जब मैं x को 2 रखूंगा, what is this answer? 0/0 आ जाएगा. 0/0. अगर ये वैल्यू 0/0 आ गई, we'll not go into much detail, but there are said to be 7 indeterminate forms. ये 7 में से one of the indeterminate form है. हमारे 11th के सिलेबस में और इवन 12th तक हम 2 ही फॉर्म्स की बात करते हैं. 0/0 and infinity minus infinity. बाकी 0 की पावर इंफिनिटी है, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी है. इस तरह की और 5 फॉर्म और हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, स्टडीड एट यूनिवर्सिटी लेवल. तो अभी सिर्फ 2 फॉर्म्स पे फोकस. उसमें से ही पहली फॉर्म सिंपल ऑब्जर्वेशन 0/0. अब अगर मैं इस सिचुएशन को सीधा मैं x को 2 पुट कर देता हूं, सीधा लगता है कि भैया पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आंसर 0/0 आ गया. सो पहले सिंपलीफाई करेंगे. बट अब जरा लिमिट के कांसेप्ट को रिलेट करना शुरू करिए. x is not equal to 2, approaching to 2, 2 के नंबर लाइन पे जस्ट पहले कोई पॉइंट ले लें 1.9, ठीक है, और यहां ले लेता हूं 2.1. फॉर अ सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं अब ये जो वैल्यू पुट करूंगा 1.9, 1.9 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 माइनस 2. लेट मी यूज माय कैलकुलेटर और इस वैल्यू को मैं जल्दी से इवैल्यूएट करता हूं. तो दिस वैल्यू इज 1. अप्रोचिंग 4 आएगा. 1.9 एंड देन दिस माइनस 4 कर दिया. 0.39 डिवाइडेड बाय 0.1. तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया? व्हाट इज दिस आंसर? 39/10 which is 3.9. अब अगर मैं वैल्यू निकालता 2.1 के ऊपर, तो वो वैल्यू आपके पास चेक करिए, रफ आइडिया दे रहा हूं, वो 4.12 या समथिंग से आ जाएगी. मैं और मैच कर देता हूं 1.992, 2.007 एंड सो ऑन. फिर इस आंसर में वैल्यूज की लिस्ट बना ली. वो सारे आंसर्स इस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं. 4. एनी गेस? 4. यस.
That's 4. अभी तो मैंने एक ही वैल्यू लिखी है, इन्हीं से देकर आप एक आइडिया ले सकते हैं. It is 4. When I take a table और 5 पॉइंट पे ड्रॉ करके दिखा देता, बेटर आइडिया लग जाता. A value is coinciding with 4. We say this is actually equal to 4. सर बट वो सिंप्लीफाई करके 4 आ जाता. यस सर, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के एक्सपांड करके आ तो जाएगा. ऐसे पॉइंट्स लेने वाला. दिस इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. अब जो मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर algebraic approaches to find out the limit. I always begin with the basic fundamental thing. Need to understand कि limit का concept होता क्या है, कि limit क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब इसकी जो मैंने ये concept बताया है 12th में लिंक होगा with, अभी स्टार्टिंग में ही डेरिवेटिव से होगा, in 11th only, and then the both will be linked with the your calculus, integral calculus and आपका हो रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस. उनकी फंडामेंटल डेफिनेशंस जो बनी है, क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन 12th में आएगा. उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये नंबर लाइन और ये इस चीज को समझने से बनता है. क्वेश्चन तो इसके बिना भी सॉल्व हो जाएंगे, नो डाउट इन दैट. क्वेश्चन का एक रूल बताऊंगा, आप में से कई अभी डायरेक्ट जानते भी होंगे, तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होने वाले, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. इफ द फार्मूला इज क्लियर टू मी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना था, I just need to understand and look carefully. Factorize कर दिया, factorize. अब लॉजिकली सोचो. Yes sir. x2 के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है. I can cancel them out. अब एक बार जरा x को 2 पुट करो. 4, which is a finite value, hence the limit of this function. तो मुझे वो टेबल और ये सब एक्चुअल में नहीं जाना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. इवन इफ यू चेक आउट योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मैं तो अभी एक दो एग्जांपल पे रुक जाऊंगा, कम से कम 5-6 डिफरेंट एग्जांपल्स विजुअलाइज करने के लिए दिए हैं. अगर मैं किसी फंक्शन के ग्राफ्स के थ्रू विजुअलाइज करना चाहता हूं, तो दैट इज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस इन योर एनसीईआरटी इटसेल्फ. तो अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स समझना चाहते हैं, प्लीज गो थ्रू फर्स्ट 5-6 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल्स, तब आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा. यस, लिमिट. ओके, चलो गुड क्वेश्चन. बैठिए, मैं कितना सा चेंज कर रहा हूं, जैसा भी आपने कहा. लिमिट अगर यहाँ 1, बाकी तो चलो यही है, 1 पुट करना, -3/-1. यहाँ प्रॉब्लम आई ना, 0/0 अगर होता, प्रॉब्लम कब आई? I put x is equal to 1, जो भी पॉइंट आपने मुझे कहा, and if by solving this I am getting some finite value, so that is nothing but the limit of this function. Direct answer. Sorry. एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप ये लगाओ, अगर यहाँ पे मान लीजिए रूट में होती, आप कह देते x है अपोजिट टू रूट 2, हार्डली मैटर. 0/0 है तब मुझे सोचना है, नहीं तो रूट 2 रखना जरा. 2 - 4 -√2 - √2 कॉमन कैंसिल करना है, नेगेटिव कॉमन कैंसिल करना है, कर दो, नहीं तो यही आंसर. तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस चाहे रूट में हो या जैसे भी. यस सर एक बार ये समझा दो कि दोनों साइड से अप्रोच करना जरूरी क्यों है, वरना लिमिट पॉसिबल नहीं है. तो मैंने बताया था, आपने जो टेबल जो मैंने बताई हैं, आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे. मान लो x² का ग्राफ दिया मैंने, x² का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है. तो अगर मैं इसमें कहता हूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, सिंपल केस ही लिया ये, तो 1 के ऊपर ये 0/0 दे रहा था. बट अगर मैं 1 के ऊपर, अरे फंक्शन तो मैंने अभी ले लिया है x², राइट. अभी 0/0 की फॉर्म की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ ये आप चेक करिए. और मैं यहाँ जरूर 2 कर देता हूं, x को 2 पुट करा, 2² 4, आंसर आ चुका इसका लिमिट. अब विजुअलाइज कैसे होगा? यस सर.
2 को अप्रोच करने का मतलब यहाँ पर x is equal to 2 है कहीं पर, ये रहा 2 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर। अब अगर मैं 2 से ले जाता तो ये वैल्यू यहाँ आ रही है, 2 से थोड़ा और आगे गया ये वैल्यू यहाँ, और नजदीक आते चलो और यहाँ से, तो फ्रॉम बोथ द साइड्स I am approaching to some specific value. We'll be very soon talking about the limits in the case of piecewise functions. वहाँ एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर होता है कि कहीं पे ग्राफ पे ब्रेक आ गया। ब्रेक का मतलब मेरा ग्राफ फंक्शन का ये जा रहा था, फिर इसके बाद यहाँ से ये कोई ऐसा हो गया। We have the existence of such graphs. अब ब्रेक का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मान लो ये ग्राफ ऐसा था और ये मेरा पॉइंट था x is equal to 2, तो 2 के ऊपर मैंने होल दिखा दिया। होल का मतलब यहाँ पर ब्रेक आ गया, तो इस पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। वहां लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट से अब हम बात शुरू करेंगे, और किस वैल्यू के ऊपर लिमिट सेम आएगी दैट इज स्टडीड इन क्लास 12। तब हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो इसीलिए समझ आ गया, वी कैन ऑलवेज। चलिए इजी क्वेश्चन आपके रखता था, लिमिट x टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाय x माइनस 3। वेट एंड थिंक, 0 by 0 है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यस इट्स 6। सोचो ये x स्क्वायर माइनस 9 यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो, a x plus 3 x minus 3 प्लस x अप्रोच टू 3 था, 3 के इक्वल तो नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, कट गया। क्वेश्चन एक्चुअल में मैंने आपको ये दिया था, अब फिर क्या बताया एक बार भी बुक कर, अगर फाइनाइट आंसर आ गया वो ही आपकी लिमिट, नो नीड टू वरी, x को 3 रखा एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। I already have introduced the basic one software Desmos, अगर आपको याद हो, मोबाइल ऐप भी है या लैपटॉप पर भी है, तो आप Desmos के ऊपर जब आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ मान लो मैंने ड्रॉ किया, then you can visualize कि आंसर 6 को कैसे अप्रोच कर रहा है, and hence the limit will be 6. Yes. I'm not getting expand क्यों? हाँ करा था, तब भी करा था x, कहाँ कह रहे हो आप? हाँ इसमें एक्सपेंड कर दो आप, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे यही है, ये काट दो, फिर आप x को 1 पुट करो, 1 प्लस 2 फ्री, स्टिल तभी वो आएगा। अगर मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया कि वैल्यू पुट करते ही फाइनाइट आंसर आ रहा है, फैक्टराइजेशन इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड एट ऑल। चलिए एक ये क्वेश्चन बताइए, x limit x approach to 5 x minus 22/7। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। लिमिट x टू पाई करा है और फंक्शन ले दिया है x माइनस 22/7।
0 श्योर। चलो एक बार x को पाई पुट करो, पाई माइनस 22/7, तो यही आंसर। सर यस सर, सर जीरो तो नहीं आएगा, दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती है। कर दो आप वैल्यू पुट, पर आप एक मुझे ये बता दो, आपको जब मैथ्स में किसी भी टीचर ने 9th में 8th में पढ़ाया था, क्या ये कुछ कहा था कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है? इट इज Yes, नॉट sir. इक्वल टू पाई। तो अगर आप ये कोई भी स्टूडेंट ये लिखता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज रॉन्ग। पहले फंडामेंटल रिवाइज करो, रिविजिट, दिस इज रॉन्ग। पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है। तो मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए 22/7 दे दिया था। इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड कि मैं इसकी जगह 22/7 रख दूं। दिस इज अ रैशनल नंबर, खत्म ही नहीं होता इसकी तो डेसिमल एक्सपेंशन। Yes, sir. तो मैं इसको कैसे रैशनल नंबर के इक्वेट कर सकता हूं डायरेक्टली? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इट इज नॉट। Yes, sir. बट सर उन्हें जरूरत क्या थी रैशनल इरेशनल नंबर दोनों में रिप्रेजेंट करने की, एक में करना चाहिए था ना। ठीक है, मैंने अपना लॉजिकल एक क्वेश्चन फ्रेम किया है कि भाई मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपको इसके बीच में डिफरेंस पता भी है या नहीं पता है। तो ज्यादातर तो यही होता है कि पाई इक्वल 22/7, जबकि मैं फिर बता रहा हूं ये गलत है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस आइडिया। एवरीवन इन द ऑनलाइन क्लास प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। सर Yes. Find this limit. एट क्लास के कंसेप्ट की बात हो रही है। सर फैक्टराइज कर लेंगे। Yes. सबसे पहली बात, आप x को 1 पुट वैसे करके देखो, 0/0 आ रहा है। यस क्लियर कट ऑब्जर्वेशन भी एक को चेक करना है लॉजिकली, लिख के नहीं दिखाना, चल रहा है काम। अब ऊपर वाला क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। I don't think I need to show these steps. Splitting the middle term कर दिया, ये आ गया, 1 पुट किया, -2 hence the limit. That's it. तो आपने जो भी 8th में फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है और 9th में फैक्टर थ्योरम याद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो अब यहाँ यूज में आने वाली है। लिमिट x to 0 √1 plus x minus √1 minus x upon x. Evaluate this limit. Question simple है, evaluate the following. सर एक बार क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो, दिख नहीं रहा। Limit x to 0, न्यूमरेटर में है √1 plus x minus √1 minus x और divided by x. ओके सर, थैंक यू सर। 0/0 है ये, √1 is 1। अगर मैं x को सीधा 0 रख देता, 1 minus 1, 0/0। Since it is 0/0 form, I can proceed further to find this limit, और ये exist कर रही। Method goes like this. Rationalize. 9th में किया हुआ है। यस इसे सर। देखो, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर एक तो प्लस हमारा का ऊपर आ जाएगा और नीचे प्लस बना नीचे है तभी रैशनलाइज कर सकते हैं। दैट इज नो वे द करेक्ट नोशन। ऊपर भी दिया है तब भी मैं कॉरेस्पॉन्डिंग रैशनलाइज कर सकता हूं, मतलब प्लस आ जाएगा बीच में,
Please make it sure this step is clear. Oh sorry, यहाँ 0 this is. Next, न्यूमरेटर में क्या बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैंने बनाया है क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने जा रहा हूँ। तो लिमिट x टू 0 a स्क्वायर 1 प्लस x माइनस b स्क्वायर अपॉन x इंटू ये सारा एज इट इज कॉपी करो लाइक दिस वन। ओपन करो ब्रैकेट, क्या आया ऊपर 1 से 1 कट गया x प्लस x 2x आ गया 2x अपॉन यस x अपोज टू 0 था। बहुत ध्यान से इस चीज को देखिए, मतलब प्रॉब्लम इस फैक्टर की वजह से थी 0/0 जो बना रहा था, अब वो कैंसिल हो गया, x से x कट गया। रूल है लिमिट का वो बताना रह गया है, अगर कांस्टेंट ऐसे दिया है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपल। तो 2 का बाहर। अब जरा एक बार फिर से x को 0 रख के देखना, x को 0 किया, I'm getting a finite value 1 plus 1 2 the required answer, the limit is 1. Give me a second. So there are certain fundamental rules, or you can say the theorems on limits. बहुत इजी है समझना वैसे। लिमिट x टू a अगर है f of x plus g of x, अगर दो फंक्शंस मैंने एक साथ ले लिए हार्डली मैटर, लिमिट दोनों में लिमिट्स लग जाएंगे विद प्लस साइन, दोनों के साथ ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इवन अगर यहां माइनस होता ये माइनस में आ जाएगा, इवन अगर यहां मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस होते मल्टीप्लाई में आता, और अगर मैं बात करूं डिवीजन के केस में, मतलब f of x भी हो अपॉन जाएगा। g of x, लिमिट न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अंडर वन कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? gx is not equal to 0। है ना, gx 0 की बात नहीं है, ये वैल्यू जो है क्लियरली नीचे 0 नहीं आना चाहिए, यस ऊपर सर। 0 चलेगा क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बट 1 अपॉन 0 अगर बन जाएगा या 7 अपॉन 0 बन जाएगा वो डिफाइन नहीं आएगा, उस केस में लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट कर रही है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। सर यस सर एक क्वेश्चन था सर, लिमिट x टेंड्स टू 2 है और x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2, वो कैसे होगा? लिमिट x टू 2 फिर सर x टू द पावर 5 माइनस 32 और आगे बस यही है क्वेश्चन। बाय x माइनस 2। सर ये तो फॉर्मूला से हो जाएगा। अभी ये हमारे अलग फॉर्मूलाज आने वाले हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। यस तो सर। यार ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये अभी डायरेक्ट के अंदर अभी भी बता सकता हूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। फॉर्मूला से सिंगल लाइन में इसका हमारा आंसर आ जाएगा। यस सर। आई थिंक 80 था इसका आंसर। ओके
क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लिमिट x to 2 x cube minus 4x square plus 4x upon x square minus 4. Yes, please everyone try it out. Splitting वगैरह 8 का कंसेप्ट यूज होगा, ये मैंने हिंट दे दिया। सर दोनों को सिंपलीफाई कर देंगे तो फैक्टर कट जाएगा, जो 0/0 ला रहेगा। तो चेक कर लेते हैं। My first observation, how will you factorize this? X common, x square minus 4x plus 4. Next step, what is this? X minus 2 का होल स्क्वायर है या नहीं है? Yes, sir. आप डायरेक्ट यहाँ स्प्लिटिंग कर लो, उसके बाद यही आएगा। अब मैं चलो नीचे भी फैक्टराइज कर देता हूँ। x 2 के इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। यस सर। एक फैक्टर कैंसिल, I left with x into x minus 2 upon x plus 2। x को 2 पुट करना जरा, कितना है? यार which is 2 into 0/4, 0/4 which is 0. Answer of a limit can be 0, no problem in that. अब एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, सर अब ध्यान से नोटिस करना। इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने इन्हें रिवर्स कर दिया, that's it. बेटर वे में क्या करेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी नहीं कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे? आप चेक करो, ये सारे स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड विद रेसिप्रोकल हो रहे हैं, तो मैं फोकस करूंगा इस स्टेप के ऊपर। ये क्या बनकर आ जाएगा? रिवर्स होकर आ रहा है ना, तो आप ये कर देते हैं। अब आप जब x को 2 पुट करके देखते हैं, 4/0 आ जाता, 4/0 which is not defined। ये तो नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हो गया? कंक्लूजन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर अगर हम इसको एक बार और रैशनलाइज कर दे तब भी नहीं आएगा? नहीं, कर लो आप कैसे भी करके, इट विल नेवर। ओके सर। सर कुछ कुछ में तो पर कर सकते हैं ना? अब सी आप कैसे भी कर लीजिए, आंसर यही आएगा, क्योंकि फॉर्मेट लास्ट में यही मिलने वाला है। बट ऑफ कोर्स दिस इज द इजीएस्ट वे, इससे ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है। यस सर, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में करना पड़ता है 2 बार 3 बार। आएंगे वो भी आने वाले हैं, पहले थोड़ा इजी रखते हैं। मैं आपका सिर्फ 8 तक ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन चेक कर रहा हूं, दैट्स इट। लिमिट x to 2 x cube minus 2x square upon x square minus 5x plus। अच्छा, आपने सब में ये x को 2 पुट करके वैसे चेक किया था? आई डोंट थिंक सो, सबने नहीं करा। स्मार्टली मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई क्या कर सकता था? अगर नॉर्मली तो यही आ रहा है, मैं इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लस कर देता हूँ, मान लो ये क्वेश्चन प्लस, आप फैक्टराइजेशन और लगे रह जाओ, यू वेस्टिंग योर टाइम। x को 2 रखा,
8 प्लस 8y, नीचे कितना आ रहा है? एक बार फिर सोच लें, फैक्टराइजेशन क्या हुआ था इसका? x माइनस, ये नहीं हुआ था? नहीं, हाँ यही हुआ है, ये हुआ। एक बार जरा x को 2 पुट करना, isn't it 0 into -1? Anything upon 0 not defined, और आप फैक्टराइजेशन और अननेसेसरी आगे लग जाते, बट एक्चुअल क्वेश्चन तो चलो यही था। अब आपका आंसर ठीक है, -4 है, एग्री। कॉमन लिया, क्या है कॉमन? x स्क्वायर, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, प्रॉब्लमैटिक फैक्टर कह देते हैं जिसकी वजह से इशू आ रहा है। प्रॉब्लमैटिक फैक्टर कैंसल आउट। अब एक बार जरा फिर से x को 2 पुट करो यहां, -4 your required वैल्यू तो मैंने लास्ट में पुट करी है। फर्स्ट स्टेप में अगर आप 2 वैल्यू डालो तो क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है, करके देखिए। ये आंसर तभी पॉसिबल है जब यहाँ ये 0/0 होगा। अगर ये 0/0 नहीं है, मुझे ये कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट और आंसर आ चुका है ऊपर ही। या वो 0 होगा या नॉट डिफाइंड, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 या नॉट डिफाइंड के अलावा, तब गारंटेड ये पहला स्टेप 0/0 रहा हो। उसके बाद ही you will be able to solve it like this. Right? I'll share the PDF को आप चेक कर लेना जो भी क्लास में डिस्कस किया है and the corresponding questions. Yes. सर डिफरेंशिएशन भी क्यों नहीं करते? वो तो लिमिट्स का स्पेशल केस ही है ना, मतलब लिमिट्स से बहुत सिमिलर है। लिमिट्स का स्पेशल केस ही है ना डिफरेंशिएशन, तो वो हम क्यों नहीं कर रहे? यस सर, एलएच भी तो लगा सकते हैं। मेरी मजबूरी है, लगा सकते हैं। that is in the second term. अभी हम Okay, यही sir. बात करेंगे। चलिए एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द ऑनलाइन क्लास। एक मिनट मैं ये बंद करूं। एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। Thank you, sir. Have a good day, sir. थैंक यू सर। कैलकुलेटर में इसलिए कैसे करके ना फॉर्म बना रहा हूं। सर शायद तो 5 ज़्यादा तो कम है। हाँ, सर अगर कम होगा तो सर -0.9 ये ऐसा थोड़ी 0.1 आप कैसे इसकी क्या वैल्यू ले रहे हो? थोड़ी बहुत में आपने कैसे कहा कि पॉइंट बनी हो? व्हाई नॉट 0.001? व्हाई नॉट 0.02? ऐसे तो अप्रोक्सीमेट हम जस्टिफाई करने के लिए चेकिंग अप्रोच लगा रहे हैं। अदरवाइज ये आंसर सिर्फ यही रहने वाला है क्योंकि मुझे पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता। एवरीवन लीव द क्लास।